So, in the previous class, we have discussed about different non-parametric tests, and we have covered three basic tests, that is the sign test, then chi-square test, and McNemar test. So, whenever there is no suitability of conducting parametric tests, then whenever the sample size is very less, and whenever we are what you can say the data points are not normally distributed, then at that time we just try to uh, explore the situation for conducting non-parametric test. I gave you the situation also. Whenever suppose you are conducting a research on special children, then you are quite sure that you will get very small sample within a particular state or within a particular city. You will not able to get a normal type of outcome. So in that case, we have to depend on non-parametric test. Or many a times, whenever you are going to conduct a case study, so that time also you go for conducting non-parametric tests. So the Mann-Whitney U test, or it is also called as Wilkinson rank sum test. So you just try to see that in this case हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ ये उस कंडीशन का बात कहता है whenever we want to compare a continuous outcome in two independent samples. दो independent samples में अगर हमें compare करना है two independent samples, you have just seen in the sign test the paired t-test situations were there. Yeah, one sample t-test situations was there. But in this case, whenever there are two independent samples, दो independent sample होगा, paired वाला नहीं, two independent sample जब रहेगा, उस समय हम मैन वाइटनी यू टेस्ट या रैंक सम टेस्ट को यूज करते हैं. The null hypothesis is that two populations are equal. That is the by convenience we used to say that both the samples are equal or both the populations are equal. And the test statistics is u, the smaller of. So you try to use these two formula. One is u1 and the other one is u2. So ये u1 और u2, that's why it is called as Mann-Whitney U test. ये u1 और u2 जो है, ये आपको दो वैल्यू देगा u1 और u2, और ये दोनों का जो इस दोनों में जो लोअर होगा, जिसका वैल्यू लेस होगा, दैट विल बी आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. जैसे टी टेस्ट में जो वैल्यू आता है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, एफ में जो वैल्यू आता है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है. मतलब आपका calculated value जो है, that is called as test statistics. So you will get two values u1 and u2, and in between them you have to take the lower value. And what is r1 and r2 are the sum of the ranks in group 1 and 2 respectively. And what how you take decision हम कैसे लेते हैं, अगर हमारा u जो है, जो कि ये दोनों u में से आपको u सेलेक्ट करना रहेगा जो लोअर वैल्यू होगा, वो अगर आपके क्रिटिकल वैल्यू जो टेबल से हमको मिलेगा, जो भी आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट सब हैं उनके लिए अलग से टेबल सब बना हुआ है, टी टेस्ट के लिए, एनोवा के लिए, काई स्क्वायर के लिए, मैन वाइटनी यू टेस्ट के लिए, इस सब के लिए टेबल बना हुआ है. और उस टेबल में जो वैल्यू है उससे अगर आपका यू जो है वो अगर लेस है, then you can reject the null hypothesis. तो हम null hypothesis को reject करते हैं. Now just try to see the example. ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव जस्ट टेकन द सपोज एग्जाम्पल, क्योंकि एक मैथमेटिकल एक एजुकेशनल सिचुएशन का बात करेंगे, तो सपोज दिस आर द ऑब्टेन्ड मार्क्स. ये मार्क्स है आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. आपने किसी मेथड से पढ़ाया है और उस समय ये उनका मार्क है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन सैंपल का. ये आपका 54, 67, 98, 96, 99, 46.5, 42, these are the marks of that particular group, that means experimental group. And this is the second group where there is
नो ट्रीटमेंट और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इज देयर। आपके कन्वेंशनल मेथड से, आपके ट्रेडिशनल मेथड से, लेक्चर मेथड से आपने पढ़ाया और उस समय ये सब अचीवमेंट्स स्कोर आया। तो ये इसलिए यहाँ दो इंडिपेंडेंट सैंपल है, देखिए, एक ट्रीटेड सैंपल, एक अनट्रीटेड सैंपल, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप आप मान सकते हैं। बट दिस इज a case of Mann-Whitney U-test because sample is very less, 1 2 3 4 5 6 7 8, only 8 students are there। अब हम रैंकिंग किए हैं। रैंकिंग करने का मतलब है कि वी जस्ट ट्राई टू टेक द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड रैंक इट एज 1, है ना। जस्ट ट्राई टू सी दिस इज द वैल्यूज आर, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू इज 13, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू इज 13 taking both the group। if you are seeing the lowest value is 13, तो 13 को rank 1 दिया गया, it is in the reverse order। and then after that the next highest value is 41, so इसको 2 दिया गया, and the next possible value is 42, तो इसको 3 दिया गया, and the highest value is 99, जिसको कि 14 दिया गया है। So seven sample size is 7 only. I told you 8, but 7 is there. So highest possible size is 14. So जो सबसे highest value 99 है, उसको यहाँ 14 दिया गया। I hope you can follow। अब देखिए, ये दोनों को साथ में मिला के रैंकिंग किया गया है। लोएस्ट पॉसिबल को 1 माना गया है और हाईएस्ट पॉसिबल को सबसे हाईएस्ट रैंक 14 दिया गया है। तो इस तरह से ये रैंकिंग किया गया फ्रॉम 1 to 14, एंड देन इट हैज बीन एडेड। ये रैंक को ऐड किया गया, R1 को ऐड किया गया, एंड देन यू हैव गॉट द अनट्रीटेड ग्रुप में भी रैंक को ऐड किया गया, एंड देन यू कैलकुलेट U1 एंड U2। यू हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर U1 एंड U2। U1 U2 का ये फॉर्मूला है जो अभी आप देख रहे थे। you have got N1 and N2, N1 is 7 and N2 is also 7। it may be different also, दो अलग अलग वैल्यू भी हो सकता है, एक ग्रुप में 7 एक ग्रुप में 10 हो सकता है, that is the that possibility is also there। and N1 plus N1 multiply by N1 plus 1 by 2 minus R1 you have got, and similarly U2 is N1 into N2 plus N2 into N2 plus 1 by 2 minus this R2। So in this way you calculate U1 and U2। ये फॉर्मूला यूज करके हम U1 और U2 निकालेंगे। So you have got फॉर्मूला से अगर आप यूज करके निकालेंगे, you have got U1 equal to 15 and U2 is equal to 34। U1 15 आया और U2 34, and as I told you that कि आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका कितना होगा, लोअर वैल्यू 15 और 34 में कौन सा है, 15 जो है वो लोअर वैल्यू है, तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो आया वो 15 आया। एंड इट इज द थिंग इज दैट if this calculated value is less than table value, then the null hypothesis is rejected। ये हमारा इसमें जो डिसीजन डिसीजन पॉइंट है उसमें इस तरह की बात है। if your calculated value is less than the table value, then you reject null hypothesis। now how to get the table value? so here n is 7, the critical value by the table देखने के बाद ये पता चला कि critical value जो 8 है, for n equal to 7 following the Mann-Whitney test table, the critical value is 8। so you can see that 15 is not less than 8। 15 जो है 8 से छोटा तो नहीं है। That's why you cannot reject null hypothesis। null hypothesis को हम reject नहीं करेंगे, it is retained, and you can see that both the groups are similar। दोनों ग्रुप जो है वो सिमिलर हैं, उसमें कोई ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ है। इफ अगर ये वैल्यू अगर बहुत लो आ जाता, इससे भी नीचे आ जाता, आपके क्रिटिकल वैल्यू से भी नीचे आ जाता, देन यू कैन से दैट द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से हमारा Mann-Whitney टेस्ट जो है इस तरह से काम करता है। सो दिस इज द फोर्थ टेस्ट ऑफ इन द सेक्शन ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रीडमैन टेस्ट। फ्रीडमैन टेस्ट जो है ये एक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट।
और ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है यूज टू डिटरमाइन इफ देयर आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीपल रिलेटेड groups. It is typically used when you have single dependent variable measured on three or more related groups. अब ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट में we were using ANOVA when three groups were there, उसी का सब्स्टिट्यूशन आप फ्रीडमैन टेस्ट को समझ सकते हैं. Whenever there is one dependent variable but there are possibility of more than three groups, three or more than three groups, then you will be conducting the Friedman test. That is the case. If you are having three or more than three groups, जैसा कि ANOVA में हम लोग पैरामेट्रिक कंडीशन में करते हैं, in non-parametric condition you go for Friedman test. So you will take one example. एक example हम लोग लेंगे. Before that, what will be the steps? The steps will be there is no difference between the groups, and the null hypothesis will be the null hypothesis there is no difference between the groups, and the alternative hypothesis will be there is difference between the group or at least one group. Then you collect data collect करिए और then you rank the data within each group from lowest to highest. Ties should be assigned the average rank. If there are repeated values, they should have the same rank. Just try to see ये जो ranking करना है ये मैं आपको एक example में दिखाऊंगा. We'll take up the example, but first you see the steps. और फिर इस फॉर्मूला को यूज करके आई होप यू कैन फॉलो द फॉर्मूला. यहाँ पे भी काई स्क्वायर निकालना है. काई स्क्वायर फॉर्मूला इज 12 डिवाइडेड बाई n k plus 1 summation of r square rj square minus 3n k plus 1. ये कहने का मतलब ये है कि ये 12 डिवाइडेड बाई n k, n जो है आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स आपके हैं एक एक ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स हैं जो सैंपल हैं वो है, और कितने सारे आपके ग्रुप्स बनाए हैं. अगर 3 ग्रुप है तो ये 3 होगा, 4 ग्रुप है तो 4, और n है जो एक एक ग्रुप में आपके सैंपल कितने हैं वो है. और फिर रैंक्स, हाउ टू गेट द रैंक्स दैट आई विल टेल यू. आई विल डेमोन्स्ट्रेट इन द नेक्स्ट स्लाइड. यू कैन सी. और उसके बाद वही n यहाँ पे भी है और k+1. दिस फॉर्मूला विल यूज टू फाइंड आउट द फ्रीडमैन स्टैटिस्टिक्स और फ्रीडमैन स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड काई स्क्वायर. और उसके बाद हम लोग टेबल में जाके डिग्रीज, यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k-1 होगा. दैट मीन्स इफ 3 groups is there then degrees of freedom is 2. if 4 groups are there then degrees of freedom is 3. एंड उसके बाद हम लोग टेबल देखेंगे. टेबल से आप क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे. एंड इफ this calculated value is greater than the critical value, just try to see maximum of the times you just try to see that if the calculated test statistics is greater than the critical value then we reject the null hypothesis. तो हम null hypothesis को reject कर देंगे. and you can say that groups differ, group जो है वो differ करते हैं. and you और ये आपको पता होगा कि अगर आपके ग्रुप differ करते हैं तो अगर आपको ये पता करना है, सपोज 3 ग्रुप्स आर देयर ए बी सी एंड यू गेट द रिजल्ट दैट दिस ग्रुप्स फाइंडिंग्स डिफर, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि किस पॉइंट पे डिफर करते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बीच में डिफरेंस है कि सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस है कि फर्स्ट सेकंड के बीच में डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस है, सब एक दूसरे से डिफर करता है, या फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मतलब किस ग्रुप, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप में डिफरेंस है उसको पता करने के लिए यू कैन गो फॉर पोस्ट हॉक एनालिसिस करते हैं. उससे हमें ये पता चल जाता है. पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा ग्रुप में डिफरेंसेस है by conducting this Friedman test and obtaining the chi-square. If the chi-square value is greater than the table value then we reject the null hypothesis. उसके बाद जब हमारा सिग्निफिकेंट हो गया then you go for post hoc analysis to find out the specific difference. किस ग्रुप के बीच में specific difference है तो हम पता करते हैं. तो ये जैसा कि मैंने बताया कि आपका जब एनोवा वाला कंडीशन जब वायलेटेड होता है, दैट मींस अगर आपके पास पैरामेट्रिक टेस्ट के कंडीशन नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप हैं, देन यू गो फॉर फ्रीडमैन टेस्ट. नाउ जस्ट ट्राई टू सी, दिस इज द कंडीशन. ये एग्जांपल है. यहाँ सपोज 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग्स आर देयर, मेथड ए, मेथड बी एंड मेथड सी.
3 मेथड से पढ़ाया जा रहा है, 3 ग्रुप को 3 मेथड से पढ़ाया जा रहा है। 15 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। और ये जो ग्रुप में तीनों ग्रुप को पढ़ाया जा रहा है, ये तीनों ग्रुप को में का जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। मेथड 8 से पढ़ाने के बाद लिखा गया है, मेथड बी से लिखा गया, मेथड सी से लिखा है। सो नाउ दिस इज द ऑब्जर्व एग्जामिनेशन मार्क्स। अब इसका रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग विल बी डन अक्रॉस द रो। इस रो में, जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, दिस आर नॉट फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट्स का है, मतलब अगर आप देखेंगे हर ग्रुप का फर्स्ट स्टूडेंट्स का, ये जो फर्स्ट कॉलम में जो मार्क्स है 60, 55 एंड 75, इफ यू कंपेयर दीज, द lowest is in method B, and then method A, and then method C. So first rank will be given to one, rank this here, and then 2 will be here, and that rank for the group C is 3. Highest वाले को 3 देंगे और lowest वाले को 1 देंगे. And it is same. You just try to see the second column. The second row, you can see that here also the lowest is in method B. Next highest is in method A, and then method C is there. So 1, 2, 3. इस तरह से ज्यादातर ये थोड़ा इंटरचेंज भी हो सकता है। सपोज ऐसा होता कि ये 70 यहाँ रहता, 78 यहाँ रहता मेथड बी में, एंड मेथड सी में 82 रहता, तो ये मेथड ए में जाके हम 1 देते, मेथड बी में 2 और यहाँ 3 कर। तो इट कैन हैपन, ऐसा नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम मैंने लिया आपके बुक से, और इसमें इस तरह का ही अरेंजमेंट था कि ये इस तरह का रैंकिंग सब है। वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ रैंकिंग। मेथड 1 लोएस्ट से लेके हाईएस्ट की तरफ, हाईएस्ट वाले को 3 दिया गया है उसके, और सबसे लोएस्ट वाले को 1 दिया गया है, और इस तरह से रैंकिंग कर दिया गया। एंड देन रैंक्स आर बीइंग एडेड। ये रैंक सबको ऐड कर दिया गया, रैंक ए, रैंक बी एंड रैंक सी तीनों के लिए ऐड कर दिया गया। यू हैव गॉट आर्स, जो आर का बात मैं कह रहा था जो कि फॉर्मूला में है, दिस इज दैट आर, that 30, 15 and 45। अब इसी को हम लोगों ने यहाँ डाला है। You can just check it out. Null hypothesis है, there is no significant difference in the teaching methods effectiveness। Null hypothesis बोलता है कि नहीं, टीचिंग मेथड का effectiveness में कोई डिफरेंस नहीं है। The median exam scores are equal for all methods। सारे मेथड में मीडियन जो है वो 1 है। But alternative hypothesis says that there is difference at least in one pair। कम से कम एक पेयर में डिफरेंस है। So you calculate chi-square, and you have got that formula. This is the formula that we are talking about, chi-square, this formula। Then you put in this formula, you just see यहाँ 12 तो है formula में, n आपका 15 है, 15 स्टूडेंट थे, and 3 groups were there, so 3 and 3 plus 1 4, 3 into 4, and you just try to see r square j को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, then you can just try to see कि आपका this values you will get, रैंक जो आपके पास है उसको अगर हम ऐड करते हैं, you will get these values। और इसको अगर आपको what you can say, if you will square it, then ये just try to see, because of I will make it proper। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग के कारण ये ऐसा दिख रहा है। जस्ट ट्राई टू फॉलो, इट इज 30 स्क्वायर, ये 302 लग रहा है, 15 स्क्वायर एंड 45 स्क्वायर। जस्ट ट्राई टू सी हियर, इट इज 30, 15 एंड 45। सो ये 302 और ये सब नहीं है। I will use this marker to show you। It is actually this 2 is here, 30 square, 15 square and 45 square। ये एक्चुअली ऐसे है, ये पावर में जाना चाहिए था, बट इट हैज कम बिलो, टाइपिंग के कारण ऐसा हुआ है। 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड 45 स्क्वायर। सो इफ यू सॉल्व दिस वन, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू एज इट इज ऑब्टेन हियर। ये आपका वैल्यू 30 आया है, यू विल गेट द वैल्यू एज 30। आई होप यू कैन सी दिस वन। So you just see that the value is 210 minus 180, that value is 30। So 30 you have got आपका formula से, the chi-square value is 30।
and then you have to see the table value, and अगर table value देखते हैं, so आपके पास degrees of freedom was k minus 1, k is here 3, because 3 groups were there, 3 minus 1 2, तो 2 के लिए अगर आप chi square का टेबल देखते हैं, the value is 5.991, and what we have got, हमारा value 30 आया है, so 30 is greater, 30 जो है वो हमारा greater है, so we have to reject the null hypothesis, and we will say that there is difference between the groups के बीच में differences है। तो इस तरह से हम इसको आपका फ्रीडमैन टेस्ट इस तरह से कंडक्ट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। The next text is Wilkinson signed rank test. So it is quite similar to Mann-Whitney U test, but थोड़ा सा difference है, just a slight difference is there. You just add up, you don't rank the things, you just add up whatever values are there. तो उसके उसी के सिमिलरिटी में है ये। The Wilkinson signed rank test are also known as Wilkinson T test. Is a non-parametric strategy used to determine if there are significant difference between the two related or paired groups. It is often used when the data do not meet the assumption of a parametric test, or when the data are ordinal or not normally distributed. This test assess whether the medians of the two groups are, ये जैसा कि सब में है, medians of the two groups या more than two groups हुआ तो Friedman test हो गया, और अदरवाइज ज्यादातर दो ग्रुप के लिए हम ये करते हैं, और ये भी पेयर्ड ग्रुप्स के लिए होता है। So that condition is also here. Now you can also see that this test is applied when you have paired data. So these are the differences. Paired data ये आप जब होगा, जैसे कि साइन टेस्ट में आपने देखा था पेयर्ड डेटा था, साइन टेस्ट में ये साइन टेस्ट में हमने जिस तरह से काम किया था, विल्किंसन मैन-व्हिटनी यू टेस्ट जो आपने देखा, मैन-व्हिटनी यू टेस्ट और आपने साइन टेस्ट देखा, ये दोनों का कुछ पार्ट को मिला के ये टेस्ट बनाया गया है। इसमें आप देखे होंगे कि आपने देखा था कि साइन टेस्ट में पेयर्ड केसेस थे, लेकिन मैन-व्हिटनी टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल था। जस्ट ट्राई टू कंपेयर। लेकिन यहाँ पे फिर मैन-व्हिटनी टेस्ट, जिसको कि विल्किंसन ने टेस्ट रैंक टेस्ट भी बोला गया था, वहां पे इंडिपेंडेंट सैंपल था, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगेन इट हैज बिकम पेयर्ड। दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी हमने किस में देखा था, साइन टेस्ट में देखा, जो सबसे पहले टेस्ट हमने डिस्कस किया था। वहां से आप देखेंगे कि पेयर्ड केसेस के बारे में यहाँ आ गया है, और उसके बाद हम रैंक को जो ऐड करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू द मैन-व्हिटनी टेस्ट में जिस तरह से किया गया था उसके बारे में। लेकिन इन दैट साइन टेस्ट में हमने क्या किया था, प्लस और माइनस को हमने कैलकुलेट किया था, रैंक का बात नहीं था। तो ये जस्ट इट इज टेकिंग सम पैरामीटर्स कंसिडरेशन of sign test, and some parameters are equal to Mann-Whitney U test. दोनों में से कुछ parameters इसमें दिखते हैं। When you have paired data, meaning that each data point in one group is related to a specific data point in the other group, it is commonly used in educational research to compare the performance of the student before and after independent intervention, जैसे कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट हुआ। तो ये आपका ये जो है साइन टेस्ट के इक्विवेलेंट दिखता है, और मैन-व्हिटनी टेस्ट के हिसाब से इसमें रैंक जो हम लोग करते हैं वो इसकी खासियत है। So then you get this null hypothesis is there is no significant difference. Alternative hypothesis, there is significant difference. You gather data, calculate the difference, and once you get the difference, rank that differences. Rank the absolute values of the differences from smallest to largest, ignoring the signs. साइंस के बारे में हमें नहीं सोचना है, और उसको रैंक करना है। रैंक जो है वो हम लोग इसमें नहीं करते थे, साइन टेस्ट में नहीं करते थे, बट मैन-व्हिटनी यू टेस्ट में रैंक करते थे। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये टेस्ट है। मेनी टाइम्स वी गेट कंफ्यूज आल्सो कि ये कैसे साइन टेस्ट से अलग है, कैसे मैन-व्हिटनी यू टेस्ट से अलग है।
बट दिस आर द डिफरेंसेस। इस तरह से हम कंपेयर करके देख सकते हैं। Depending on the number of pairs, calculate the Wilkinson statistics y w plus or even sample size. For even sample size, w minus for odd sample size, हम प्लस या माइनस में हमारे, क्योंकि वैल्यू या तो प्री टेस्ट से पोस्ट टेस्ट वैल्यू जो है या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, इन दैट सेंस इट इज रिटन प्लस और माइनस। और उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे एंड whenever if the test status is less than, यहाँ पे भी आप देखिए जब आपका टेस्ट status that means w और w plus या w माइनस जो है वो अगर टेबल वैल्यू से कम है, just try to see Man-Whitney test, साइन टेस्ट एंड विल्किंसन साइन रैंक टेस्ट, ये तीनों में जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू जो आता है वो अगर टेबल वैल्यू से लेस है देन ओनली यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन अदर केसेस काई स्क्वायर देख लीजिए आप, टी टेस्ट देख लीजिए, एनोवा देख लीजिए, इन ऑल दोस केसेस if the calculated value is more than the table value then only you reject, but in these all cases the test statistics should be less than the table value, then only you can reject the null hypothesis. So ये difference है। Now take that example, suppose ये example है, दो टीचिंग मेथड के पहले, टीचिंग मेथड से पढ़ाने के पहले ये आपका स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहा 75, 80, 65, ये उनका अचीवमेंट टेस्ट रहा। और उस मेथड नए मेथड से जब आपने पढ़ाया तो आपका ये आपका अचीवमेंट टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, ये पहला वाला प्री टेस्ट है एंड द नेक्स्ट वन इज द पोस्ट टेस्ट। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका प्री टेस्ट है, प्री, एंड दिस इज द पोस्ट टेस्ट, दिस इज द पोस्ट टेस्ट। इस दोनों को देखिए, जस्ट सी, ट्राई टू सी दैट सम सैंपल साइज इज वेरी लेस, sample size is very less, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, only 10 students are there। तो ये एक टिपिकल केस है that you go for non parametric test। तो हम non parametric test करेंगे और you just try to see what will be our null hypothesis, that there is no difference between the groups, and the alternative hypothesis will be there is difference between the groups। This is the, you have got these values, ये आप देखेंगे ये कैसे आया है, just try to see, you just try to see this one। if you subtract 75 minus 80 you will get minus 6, 80 minus 85 you will get minus 5, 65 minus 70 you will get minus 5, 90 minus 95 you will get minus 5। तो ये यही चीज यहाँ दिया गया है, just try to see minus 6 minus 6 minus 5 minus 5 ऐसे करके है ना। so this all you have got, these are the w minus, all the values are in minus, and that says that you have got, and then you add it, ranks को हमने ऐड किया। just try to see, हमने साइन टेस्ट में रैंक नहीं निकाला था, सिर्फ प्लस और माइनस साइन को ऐड किया और उसके लोअर वैल्यू से कंपेयर किया। in Man-Whitney test we have make rank, but there are two independent groups, ये Man-Whitney टेस्ट में देखा था। विल्किंसन साइन रैंक टेस्ट में क्या देखा हमने कि यहाँ पे पेयर्ड तो है लेकिन हम फिर यहाँ रैंक भी निकालते हैं, तो रैंक निकाला, डिफरेंस करने के बाद हमने रैंक निकाला और रैंक को ऐड किया, ऐड करने के बाद यू हैव गॉट -37। सो और उसके बाद जब हम टेबल वैल्यू देखें फॉर n इक्वल टू 10, तो द टेबल वैल्यू इज 18। so if you see that 18 is quite less than -37 is our test statistics, so -37 is very less than 18, -37 तो 18 से कम है ना। so if I told you that in this test Wilkinson sign rank test, Man-Whitney test and then sign test, if the test statistics is less than the table value then we reject null hypothesis। तो यहाँ reject कर दिया null hypothesis and we can say that new method of teaching is effective। तो इस तरह से हमारा विल्किंसन साइन रैंक टेस्ट को इस तरह से हम यूज करते हैं। सो दिस इज द वे, एंड ऑफ कोर्स आप कोहेंस डी निकाल सकते हैं। कोहेंस डी इसलिए मैंने इसमें बताया है कि जो भी टेस्ट सब है, टी टेस्ट है, एनोवा है,
का स्क्वायर है। सारे टेस्ट में हमारा कोहेंस डी निकालने से दैट कैन बी डन यूजिंग एसपीएसएस आल्सो। और कोहेंस एसपीएसएस में तो डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी कैन गेट। एंड अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स आर को आप यूज करेंगे तो वहां आपको कोहेंस डी निकल जाएगा, that will tell you the effect size, but it is not required. So first it is required that you find out the significant difference. और अगर से आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है अगर क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, टेबल वैल्यू से लेस है, then you reject the null hypothesis. Now the next one is the seventh one is the Kruskal-Wallis test. ये भी बहुत सुना हुआ टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, used to determine if there are significant difference between three or more independent groups. It is used when the assumption of parameters like one-way ANOVA are not met, or when the data is ordinal and not normally distributed. This test compares the median of the groups and can be thought of as a non-parametric equivalent to ANOVA. So I have already told you Friedman test. Friedman test में भी हम लोग ANOVA के पैरेलल में उसको यूज करते हैं। दिस इज अनदर टेस्ट, क्रुस्कल-वालिस टेस्ट, जो कि हम इसके पैरेलल में यूज करते हैं एनोवा के पैरेलल में, जब आपके पास पैरामेट्रिक टेस्ट के कंडीशन को हम नहीं मीट कर पाते हैं। तो आपके पास अगर 3 या उससे ज्यादा ग्रुप है तो आप उसमें क्रुस्कल-वालिस टेस्ट को यूज करते हैं। सो दैट इज द केस when you have 3 or more independent groups and a continuous or ordinal dependent variable. This is commonly used in research to compare the effect of different treatments or intervention on an outcome. जैसे वो हमने फ्रीडमैन में भी देखा था कि 3 मेथड से पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस रह जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर 3 से ज्यादा ग्रुप है तो हम इसको यूज करते हैं। यू कैन सी दिस वन। इसमें भी हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, देन यू रैंक द डेटा लोएस्ट से हाईएस्ट, और उसके बाद आप क्रुस्कल-वालिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसको H से डिनोट किया जाता है उसको कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर द कैलकुलेटेड इफ द H इज, यहाँ पे भी अगर H जो है क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और afterwards if you get certain difference you can go for post hoc analysis. post hoc analysis हम तब करते हैं जो so that you can get the exact specific difference between the groups. जैसे यहाँ है 3 different types of teaching method on achievement of students. यहाँ 3 मेथड से पढ़ाया गया, और फिर अगर हमें डिफरेंस देखना है तो हम यहाँ पे भी देखिए बहुत स्मॉल सैंपल है, 7 लोगों का है, और यहाँ पे 3 मेथड, और फिर इसके बाद जस्ट इट इज in different way you are calculating it. तो आपका जो फ्रीडमैन टेस्ट से ये इस तरह से अलग है कि इसका कैलकुलेशन का तरीका सब देख सकते हैं आप। इसमें सारे डेटा को एक साथ रखा गया, सेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया गया। वहां पे हम रो वाइज अरेंज करके रैंकिंग कर रहे थे, यहाँ पे सारे डेटा को एक साथ सजाया गया लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। कैलकुलेट द क्रुस्कल-वालिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, or suppose for this particular set of data the value is 8.97, and what is the DF value, the degree of freedoms for the Kruskal-Wallis test are equal to number of groups minus 1. यहाँ पे देखिए k minus 1 यहाँ पे 2 होगा, और suppose यहाँ critical value जो है वो निकल के आ रहा है 5.991 और आपका calculated value 8.97 है. So you can say that our test statistics is significant and there is difference in the groups, and the method one method is significantly different from other method. To find out the specific difference you can go for post hoc analysis. तो वही यहाँ बताया गया है, we have got statistical value 8.97 which is greater than 5.991 which is table value, और इसलिए हम null hypothesis को रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं कि मेथड जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करता है एक दूसरे से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रुस्कल-वालिस टेस्ट का ये फॉर्मूला है। जस्ट ट्राई टू सी दैट इट इज समहाउ क्वाइट सिमिलर टू
what we have done with Friedman test. Friedman test में जो फॉर्मूला था लगभग उसी के जैसा आपको ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट इन दी सिमिलर वे। जस्ट जिस तरह का फॉर्मूला वहां दिख रहा था, ओनली दिस एनजे जो है यहाँ नीचे जो दिख रहा है वो आपको वहां पे इस तरह से नहीं था। सो दैट्स व्हाई इट इज समहाउ सिमिलर टू फ्रीडमैन टेस्ट एंड यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। So this is the in my presentation this is the last one, run test. There are other tests also, but these many tests I have discussed. रन टेस्ट ज्यादातर ये करने के लिए होता है जब आपके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो ऑफ आउटकम हो और आप ये देखना चाहते हैं ये सीक्वेंस ऑफ आउटकम जो है वो क्या एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि, जैसे यहाँ लिखा है रन टेस्ट इन दिस कंटेस्ट refers to sequence of consecutive data points with the same value. The run test assess whether the pattern of runs in the data is consistent with randomness or if it is suggested systematic trend or pattern. क्या ये रैंडम आउटकम अगर आपके पास कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड टेल आप करते हैं, तो हेड एंड टेल का आउटकम अगर हम लिखते हैं, अगर वो एक बार लिखा हुआ है एक पेज में लिखा हुआ है, सपोज 50 आउटकम लिखा हुआ है, पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर कुछ ऐसे करके अगर एक 50 आउटकम हमने लिख दिया, तो ये 50 आउटकम्स को अगर हम ये देखना चाहें कि रैंडमली आया है या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है, तो इसके लिए हम रन टेस्ट करते हैं। और रन टेस्ट जो है वो भी एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। Just try to see the same thing is written here. Example, if you are analyzing the sequence of head and tails in a series of coin flips to determine if the coin is fair or biased, ये देखना है कि ये कॉइन में क्या ऐसा है क्या कि ये एक जो रैंडमनेस जिस तरह से आना चाहिए हेड टेल वैसा दिख रहा है कि इसमें कुछ है बायसनेस, अगर ये देखना है। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे तो उस मूवी में अलग कुछ दिखाया गया है, शोले मूवी में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन के पास जो सिक्का था उसमें हमेशा हेड ही आता था, तो वो बायस्ड सिक्का था क्योंकि उसमें लास्ट में पता चलता है कि उसमें दोनों तरफ हेड ही था। सो दैट इज वन अदर एग्जांपल। लेकिन अगर आपके पास कॉइन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो एक अच्छा तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो आपके पास अगर आउटकम्स का अगर मान लीजिए 20 आउटकम्स आपने लिखा हुआ है, you can run a run test and you can see that particular coin is fair or it is not fair. तो इस तरह का केस के लिए हम आपका रन टेस्ट करते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट जब भी कोई बाइनरी आउटकम्स है लाइक हेड एंड टेल, कॉइन टॉस, then you can see that if this is according to randomness or some biasness is there. तो यहाँ पे हम लोग रन टेस्ट का यूज करते हैं। So this is few or many, जो भी आप समझें इसको, these are few or many examples of non-parametric test which I have covered in 2 different classes. Okay, thank you.